Hi, welcome to our mains answer writing initiative day 7. Today we will be discussing on a topic of geoengineering. This topic relates to GS1 paper. हमारा क्वेश्चन आज का रहेगा discuss and brief about geoengineering and do you think it is a potential tool in tackling climate change? We have to discuss two things. First, what is geoengineering? We have to discuss in brief, what is geoengineering, what are its types, and what are its uses, and then we'll have to analyze positively and negatively. Does it really helps as a potential tool in tackling climate change? So let's begin our answer. We'll follow our same old format of intro, body, conclusion. Intro में we will write about defining geoengineering, body part में we will write about types and processes, and conclusion में we will write about how is geoengineering useful as a climate change tool. So let's start with intro. Our definition is geoengineering is the deliberate large-scale intervention in the Earth's natural systems to counteract climate change. So what is geoengineering? ये प्लानिटरी लेवल पे हम कुछ इंटरफियरेंसेस करते हैं नेचुरल प्रोसेसेस के साथ. जो भी नेचुरल प्रोसेसेस चल रही हैं उनमें कुछ डिफरेंसेस, उनमें कुछ बेसिकली टेक्निक्स अप्लाई करते हैं जिससे क्लाइमेट चेंज के जो भी इम्पैक्ट आ रहे हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकें या फिर रिवर्स कर सकें. जियो इंजीनियरिंग बेसिकली टू कैटेगरीज ऑफ एक्टिविटीज़ जो हैं उनको कंप्राइज करती हैं. द फर्स्ट एक्टिविटी रिलेट्स टू कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन है, सी द बेसिक रीज़न of global warming are the intensive heating of the atmosphere due to the trapping of the sunlight by climate change or by accumulation of greenhouse gases. So either we can work on reducing the greenhouse gases, mainly the CO2, which is the chiefly responsible for trapping sunlight, heat coming from sunlight, or we reduce the amount of sunlight coming onto the earth. So either the geoengineering basically comprises two kind of activities. First is removing carbon from the atmosphere, and second is relates to reflecting back sunlight from the atmosphere. So the process of removing carbon from the atmosphere is known as carbon geoengineering, and the process of reflecting back sunlight from the atmosphere back into the universe is called solar geoengineering. These are the two basic components of geoengineering used to counteract climate change. कार्बन जियो इंजीनियरिंग के अंदर में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, मतलब व्हाट आर द मेथड्स दैट कैन कम अंडर कार्बन जियो इंजीनियरिंग. दे कैन बी एफोरेस्टेशन, बायोचार, बायो एनर्जी का प्रोडक्शन, एम्बियंट एयर कैप्चर, ओशन फर्टिलाइजेशन, एनहेंस्ड वेदरिंग एंड ओशन एल्कलिनिटी एनहेंसमेंट. सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट में आता है एल्बिडो एनहेंसमेंट, स्पेस रिफ्लेक्टर एंड स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल. सो लेट्स सी देम डायग्रामेटिकली टू अंडरस्टैंड इट बेटर. What we can do is these yellow highlighted portions are the things that reflect, the processes that reflect back sunlight into the universe, and these blue highlighted processes or techniques are the ones which captures carbon dioxide from the atmosphere in order to reduce the amount of greenhouse gases into the atmosphere. So what are the techniques used to reflect back sunlight? First is to cultivate crops that are paler in color. Albedo is what? Albedo is, this is a concept, geographical concept you need to know before understanding this solar geoengineering. When any surface reflect back sunlight, that is called the process of albedo. The more the amount of sunlight it reflect back, the more higher is the albedo of that surface or that object. So we can ग्रो लाइट कलर्स जनरली जो होते हैं वो सनलाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक करते हैं. सो उसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए अगर हम ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करें विच आर पेलर इन कलर, सो दे विल रिफ्लेक्ट बैक सनलाइट मोर. सो दीज आर कॉल्ड क्लाइमेट रेडी क्रॉप्स. देन स्पेस मिरर, वाइड स्केल, बड़े स्केल पे मिरर्स ऐसे बनाए जा रहे हैं जो सनलाइट आए तो उसको वापस यूनिवर्स में रिफ्लेक्ट कर दें. दे आर कॉल्ड स्पेस मिरर्स. देन वाइट पेंटिंग, सरफेसेस को हम वाइट पेंटेड कर रहे हैं, जैसे रोड जो होती हैं रोड्स को हम वाइट पेंट कर सकते हैं. पेवमेंट्स जो होते हैं उनको हम वाइट कलर से पेंट कर सकते हैं. द मोर द सरफेसेस विल बी ब्राइट कलर और वाइट कलर, द मोर दे विल बी एबल टू रिफ्लेक्ट सनलाइट. देन क्लाउड सीडिंग, हम एरोसोल्स स्पेसक्राफ्ट या फिर मशीन्स के थ्रू या फिर स्पेशल इक्विपमेंट के थ्रू ऐसे कुछ पार्टिकल्स जो हैं
हमारे जो स्ट्रेटोस्फीयर या फिर ट्रोपोस्फीयर में है उनको उसमें स्प्रेड कर सकते हैं. दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एरोसोल्स, एंड दीज एरोसोल्स, जिनमें से कुछ एरोसोल्स के ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन भी हो सकता है. दीज एरोसोल्स एंड क्लाउड कंबाइंडली will reflect back a large amount of sunlight. This is another form of technique which will be used to reflect back the sunlight into the atmosphere of the earth and reduce the amount of radiation into the atmosphere. The techniques which can be used to absorb carbon dioxide out of atmosphere are, we can plant more and more trees, that is afforestation, so that plants suck out carbon dioxide from the atmosphere. देन वी कैन यूज़ बायोचार. बायोचार इज़, जब हम ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है क्रॉप का, जो रेसिड्यू वगैरह बचता है, उसका हम पार्शियल डिकम्पोजिशन करते हैं, मतलब एक बंद एनवायरनमेंट में, क्लोज्ड एनवायरनमेंट में उनको पार्शियली बर्न करते हैं अंडर लिमिटेड ऑक्सीजन. तो वो जो है कार्बन वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में पूरी कन्वर्ट नहीं हो पाती और एक कार्बन के फॉर्म में, स्टोर्ड कार्बन, एक एक्यूमुलेटेड कार्बन के फॉर्म में उस जो बर्नड मटेरियल है उसमें स्टोर हो जाती है, जिसको हम वापस फील्ड में यूज़ कर सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र, जहाँ पे वो बेसिकली वहीं के वहीं ग्राउंड में जो है अंदर स्टोर हो जाएगी, वहाँ पे पैक हो जाएगी. सो एटमॉस्फेयर में वो लिबरेट नहीं होगी क्रॉप रेसिड्यू के बर्न करने से. दिस इज़ बायोचार मेथड. देन एनहेंस्ड वेदरिंग. अगर हम लैंड्स को ओलिविन रॉक्स से कवर कर दें या ओलिविन सॉइल जो है उसके ऊपर पूरी की पूरी डाल दें, तो वो जो है ओलिविन रॉक्स और सॉइल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो CO2 को बहुत हाई अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लेती है एटमॉस्फेयर से. तो अगर हम इन सॉइल्स को बहुत जगह स्प्रेड कर दें वाइड स्केल, लार्ज स्केल पे, तो वो एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करके सक आउट कर लेंगी. देन ओशन फर्टिलाइज़र. अगर हम कार्बन, फाइटोप्लैंक्टन, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स अगर ओशन के सरफेस पे काफ़ी डाल दें तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ अच्छी होगी, जो फाइटोप्लैंक्टन्स फोटोसिंथेसिस करने के लिए एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सट्रैक्शन करेंगे और उससे हमारा एटमॉस्फेयर जो है कार्बन डाइऑक्साइड से वहाँ से उसमें लिबरेट हो जाएगा. देन इंजीनियर्ड माइक्रोब्स. अगर हम एल्गी को ग्रो करते हैं ऑन अ लार्ज स्केल वाटर बॉडीज़, जो एल्गीज जो है जिनको हम फूड की तरह यूज़ भी कर सकते हैं या किसी कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, तो दीज एल्गी विल सर्व टू पर्पस. फर्स्ट इज दे विल एक्सट्रैक्ट CO2 आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर, एंड सेकेंड they will be able to give us commercial or economic benefits also. So these are the geoengineering methods which we discussed. एक बार आप इसको read कर दीजिएगा पॉज करके. You will be able to understand what are the methods under the solar engineering and carbon geoengineering which we can use in order to reduce the impact of climate change. Then what are the issues with geoengineering methods? बेनिफिट्स तो हमने देख लिए, ये क्लाइमेट चेंज को हेल्प करते हैं. व्हाट आर द इश्यूज़ विद जियो इंजीनियरिंग मेथड्स? फर्स्ट इज़, ये वाइड स्केल पे इम्प्लीमेंट करना बहुत ही हार्ड एंड डिफ़िकल्ट है, एंड इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली अफेयर. एंड इतने वाइड स्केल पे इम्प्लीमेंट कर पाना भी विदाउट कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू पीपल इज़ नॉट पॉसिबल. सेकेंड इज़ जियो पॉलिटिकल इशू. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई ऐसी टेक्निक या स्टेप यूज़ करता हूँ जिससे मेरी कंट्री में जो स्टॉर्म आता है उसको मैं डाइवर्ट कर दूं यहाँ पे, तो ये जाके बेसिकली श्रीलंका में जाके इम्पेक्ट करेगा, जिससे श्रीलंका इंडिया से फाइट करेगा, बिकॉज दिस विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर. इफ़ आई एम डाइवर्टिंग a disaster towards another country deliberately, then this will be considered equivalent to an attack over a whole country, and that will be considered a declaration of war. So countries के बीच में से conflict होंगी and ये टेक्निक्स जो हैं फेलियर की तरफ जाएंगी. कन्फ्लिक्ट विथ नेचर. क्या हम इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस से इंटरफियर करके नेचर को मैनिपुलेट और मैनेज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? ये कोशिश हमने ऑलरेडी कर ली है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो हमने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट किया था ये सोच के कि हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, बट एनवायरनमेंट की कैपेसिटी है, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगी और कुछ भी ख़राब नहीं होगा. एंड इसी का इम्पैक्ट है जो आज हम क्लाइमेट चेंज के फॉर्म में सफ़र कर रहे हैं 150 ईयर्स लेटर. सो व्हाट इज़ द गारंटी कि आज हम नेचर के साथ कुछ इंटरफेयर्स करते हैं तो कल उसका कुछ और इम्पैक्ट निकल के नहीं आएगा क्लाइमेट चेंज की तरह. देन क्वेश्चनेबल इम्पैक्ट. आर दीज टेक्निक्स रियली सक्सेसफुल और गोइंग टू बी सक्सेस इज़ अ रियली बिग क्वेश्चन. रीज़न इज़, हमने देखा था UN की एमिशन गैप रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नोवेल कोरोना वायरस कोविड डिज़ास्टर जो आया था, कोविड पेंडेमिक जो आया था, उसमें करीब 1.5 ईयर्स इंडस्ट्रियल पार्शली और क्लोज कम्प्लीटली शट डाउन थी, बट दैट डजेंट
receded doesn't slowed the speed of rising of temperature of the world, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा. The rapid speed with which the temperature is increasing across the world was continued in the year 2020 and 2021. So what is the basically the indicator which shows कि these techniques will really be successful is questionable. So these are the main issues with geoengineering methods. This challenges हमने इनको डिस्कस कर लिए. तो व्हाट शुड बी अवर वे फॉरवर्ड, हमने इंट्रो में डिस्कस कर लिया व्हाट इज़ जियो इंजीनियरिंग, उस बॉडी पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया व्हाट आर द types or methods with which geoengineering can be done. Then we discussed the advantage in short कि ये climate change से help करता है. Then we moved on to issues and challenges कि what are the challenges related to geoengineering. Lastly we move on to our conclusion that geoengineering cannot be treated as magical deus ex machina. मतलब this is not a single machine mechanistic system जिसमें हमने किसी चीज़ का इनपुट दिया और हमको तुरंत उसका आउटपुट वैसा का वैसा ही जैसा इंटेंट करते हैं मिल जाएगा. किस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं दे सकता जियो इंजीनियरिंग कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए सॉल्यूशन, सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन. जो CO2 या GHGs ग्रीन हाउस गैसेस का हाइटनिंग कंसंट्रेशन डे बाय डे इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन है, उससे टैकल करने के लिए जियो इंजीनियरिंग कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ सोल सॉल्यूशन और अ मैजिक स्टिक. तो हमको ये एक्सेप्ट करना होगा कि जियो इंजीनियरिंग से रैपिड डीकार्बोनाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल इन शॉर्ट टर्म और even in long term it is not guaranteed. So we have to look beyond geoengineering or short term solutions and we will have to look for specific technologies. कुछ ऐसी technologies and actions की need है जो नेगेटिव emissions को अचीव करने में हेल्प करे, नेट ज़ीरो एमिशंस को अचीव करने की में हमारी मदद करे बाय द ईयर 2040, 2050, सो दैट हम अपना जो टारगेट है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का, दैट इज़ अचीविंग और लिमिटिंग द ग्लोबल राइज ऑफ टेम्परेचर बाय 2 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ 2100, ये हम अचीव कर पाएँ. दिस विल बी आवर वे फॉरवर्ड एंड दिस कंक्लूड्स आवर आंसर. सो आई होप इट वॉज क्लियर टू यू. इट इज़ क्लियर टू यू. दिस क्वेश्चन इज़ पार्ट ऑफ GS1 में जोग्राफी में बेसिकली दिस टॉपिक रिलेट्स टू changes in the land features and earth systems including flora and fauna. इस टाइप का एक टॉपिक है इस नाम से. उस टॉपिक के अंदर में ये मेथड्स डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज और मिटिगेशन मेजर्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, उस सब टॉपिक के अंदर में ये जियो इंजीनियरिंग का टॉपिक आता है. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. Tomorrow we will come up with some new topic. Please write down answer before, again I am requesting, please write down the answer as soon as I put up the question before continuing to watch the whole answer video. Thank you very much.